نہ باتیں ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس مکمل اختیار ہے کہ جب واقعات اور قانون اس کے سامنے ہو تو واقعات اور قانون کے مطابق جو فیصلہ انصاف کے قریب ترین بنتا ہے وہ فیصلہ کرے، اور آج سپریم کورٹ نے یہی کیا۔ سپریم کورٹ نے اس حقیقت کو پہچانا جو پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی انہوں نے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ذرا ایک کشادہ دلی سے قبول کرتے، انہوں نے مختلف قسم کی توجیحات دی ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے آرگومنٹ دی ہیں، جس پہ کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لوئر ساتھی کامنٹ کر سکتے ہیں۔ کہ حکومت کی طرف سے اشارے سر حکومت کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں کہ ریویو میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا آپشن صرف ریویو کا ہے، کیا اگر ریویو میں جاتے ہیں تو یہ فیصلہ اس پہ امپلیمنٹ کتنی تاخیر ہوگی اور آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور دوسرا، سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی ان کے پاس اب کتنی سیٹیں ہوں گی؟ کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن سلام ہے اس کے صبر کو، اس کی استقامت کو، اور اس کی جو جس طرح سے اس نے ہم نہ حاصل کر سکیں تو ہم سمجھو گے وہ پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت ہوگی، اور اس لیے ہماری یہ جدوجہد انشاءاللہ رہے گی۔ اور ہم یہ اس موقع پہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلام ہے ہمارے چیئرمین عمران خان پہ، جس کی استقامت اس سلسلے کو پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے خود جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کن حالات میں وہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن سلام ہے اس کے صبر کو، اس کی استقامت کو، اور اس کی جو جس طرح سے اس نے پاکستان کے عوام کو جوڑ رکھا ہے۔ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، یہ جو ہماری معیشت کی بری حالت ہے، یہ جو معاشرے میں ایک تناؤ ہے، یہ سارا کچھ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اس پہ کرم کیا ہے۔ ان سارے مسائل کا حل وہ اس کی کنجی اس عمران خان کے پاس ہے، جو کہ اڈالہ میں قیدی نمبر 804 کے نام سے جانا جاتا ہے۔ باقی لیگل ایسپیکٹس ہیں، جس میں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ عطا تارڑ نے انہوں نے پریس کانفرنس کی، جس میں کہ بڑا دکھ ہوا کہ اعظم تارڑ کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ذرا ایک کشادہ دلی سے قبول کرتے، انہوں نے مختلف قسم کی توجیحات دی ہیں، انہوں نے مختلف قسم کے آرگومنٹ دی ہیں، جس پہ کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے لوئر ساتھی کامنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بات کروں گا کہ جتنے تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ورکرز ہیں، ساروں کو شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اور میں اس میں ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں، خاص طور پہ خواتین، ان کو فی الفور رہا کیا جائے، اور جتنے بھی ان کے خلاف جھوٹے مقدمے بنے ہوئے بہت ہی اہم دن ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تاریخ کے طالب علم کے حوالے سے کہ گنتی کے شاید 3 مقدمات ہیں پاکستان کی تاریخ میں جہاں ہماری عدالتوں نے وقت کے جابر کے خلاف فیصلہ دیا ہے۔ فیصلے بعد میں تو آتے ہیں جب جابر منظر سے ہٹ گیا ہوتا ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جس نے جابر کے عزائم کو اس کی موجودگی میں پاش کیا۔ جو جبر، جو ظلم ہم پہ برپا کیا گیا ہے پچھلے 2 سالوں سے، آج میں سمجھتا ہوں وہ ظلم ٹوٹ چکا ہے۔ آج اس کے خلاف ہماری مدافعت رنگ لائی ہے، اب ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم قانونی جنگیں بھی اپنی جیتیں گے، لیکن یہ قانونی جنگ ہماری سیاسی جنگ کو مزید تقویت دے گی۔ ہم عدالتوں میں بھی ہوں گے، ہم سڑکوں پر بھی ہوں گے، اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، بہت ہو گیا۔ جو 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر، عوام کی رائے پر، اس ڈاکے کو ہم نے بے نقاب کیا ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے عوام کا حق لے کر چھوڑیں گے۔ آج ایک پہلا بڑا قدم ہے۔ دیکھیے 8 فروری کی وہ تاریخ رات 8 اور 9 فروری کی، اس کا میں خود معتوب بھی ہوں، چشمدید گواہ بھی ہوں، اور اس میں جو رول الیکشن کمیشن کا ہے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ آج عدالت نے بھی بیان کر دیا
इलेक्शन कमीशन ने एक नहीं यके बाद दीगरे गलत फैसले किए, जमहूरियत के खिलाफ फैसले किए, पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ फैसले किए, PTI के खिलाफ फैसले किए। आज इलेक्शन कमीशन किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। मैं बिल्कुल तारीफ करता हूं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को फिर फौर इस्तीफा देना चाहिए और मंजर से हट जाना चाहिए। उनका कोई इस्तेहकाक नहीं है कि इतने बड़े इदारे में बैठकर वो जमहूरियत पर यलगार करें। तो हमें अब मुस्तैद रहना है, हमें साबित कदम रहना है। तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार। देखिए, ये जो एक अफसोसनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की तरफ से की गई कि ये तो पिटिशनर नहीं थी PTI की ये प्रेयर नहीं थी, ये बिल्कुल बचकाना बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियार है कि जब वाक़यात और कानून उसके सामने हो तो वाक़यात और कानून के मुताबिक जो फैसला इंसाफ के करीब तरीन बनता है वो फैसला करे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने यही किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस हकीकत को पहचाना जो PTI है। PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। PTI पाकिस्तान के अवाम का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि PTI के वजूद को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। 13 जनवरी का फैसला, उस फैसले का इतलाक, ये सब कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो हमें अब आगे बढ़ना है, हमें मुदाफ़त करनी है। जो ट्राइब्यूनल एक बॉन्डे किस्म के बनाए जा रहे हैं इलेक्शन फ्रॉड को छुपाने के लिए, रिटायर्ड जजों को कहा गया कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से तयनात करेगा, इसके खिलाफ अब हमें भरपूर जद्दोजहद करनी है, अदालती सतह पे भी और सियासी सतह पे भी, पार्लियामान के अंदर भी और पार्लियामान के बाहर भी। ये खुला झूठ है। इलेक्शन एक्ट 2017 तमाम जमातों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल के तौर पे काम करेंगे और इलेक्शन में होने वाले फ्रॉड का जो मामला है उनके पास जाएगा। इन्होंने पहले एक ऑर्डिनेंस के जरिए और फिर अपनी झूठी अक्सरियत को इस्तेमाल करते हुए एक एक्ट के जरिए ये कह दिया कि उठाकर इलेक्शन कमीशन चाहे तो मुकदमात रिटायर्ड जजों के हवाले कर दे जो उसके मनपसंद। ये बिल्कुल एक ऐसा झूठ है जिसको हम कबूल नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पिटिशन मैंने लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन में उसका फैसला हो जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि वो फैसला भी कानून के मुताबिक होगा और इन मनपसंद रिटायर्ड जजों को बिल्कुल अदालत कबूल नहीं करेगी। ये बहुत बड़ी इंशाअल्लाह हमारे लिए मजीद फतह होगी, हमें इसकी तवक्को है और हम हर सतह पे लड़ेंगे। हम उस फ्रॉड को इसलिए सामने लाएंगे और उसका तदारुक करेंगे क्योंकि ये अवाम का वोट है जो अवाम की अमानत है। मुझे आज बच्चे बच्चियां बाजारों में मिलते हैं और कहते हैं मेरे वोट का क्या हुआ। वो रोते हैं कि हम पे जिम्मेदारी है अपनी कौम की कि हम उस रात के फ्रॉड को ख़त्म करें और जो असल हकीकत है उसको सामने लाएं और पार्लियामान को उसका असली तशख़्ख़ुस बताएं। तो हम साबित कदम रहेंगे। हमारी सियासी लीडरशिप, हमारी कानूनी टीम, हम मिलकर काम करेंगे सियासी सतह पे, कानूनी सतह पे और इंशाअल्लाह ये मुल्क का फलाह की जानिब बढ़ेगा। कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसकी आवाम, जिसके यूथ उस मुल्क के निज़ाम से मुतनफ़्फ़िर हो। कोई झूठ के निज़ाम को नहीं मानता। आज जो ताले आज़मा जहाँ कहीं भी बैठे हैं जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को फलां जगह से कुछ पैसे लेकर कोई रिस्ट्रक्चरिंग करके फलाह की राह पे डालेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप पाकिस्तान के अवाम को उनकी आवाज़ वापस नहीं करेंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा और हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बनकर लड़ते रहेंगे। शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को ILF पाकिस्तान की तरफ से अपनी पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज उनका दिया गया मैंडेट सुप्रीम कोर्ट की मोहर सबक होने के बाद उनको वापस मिल चुका है। और अगली नबीद ये दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कौम ने फॉर्म 47 के इन मुर्तज़र लोगों को पहले रिजेक्ट कर दिया था। अब इंशाअल्लाह इसके लिए भी सलमान अकरम राजा साहब ने जो पिटीशन फाइल की हुई है इलेक्शन ट्राइब्यूनल के हिसाब से, शोएब शाहीन साहब ने हाई कोर्ट में जो पिटीशन
सेक्रीफाइस की है, हम उसमें भी शुरू होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आइंदा हम लोग ये चीज नहीं टॉलरेट करेंगे। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, सपा सिस्टम चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। ओवर टू इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। बुनियादी तौर पे एक फैसला था जो 8 फरवरी को हुआ था, जो कि पाकिस्तान के जमहूरी लोगों ने अपने वोट डालकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सपोर्ट से आए हुए कैंडिडेट्स को उन्होंने वोट किया। और दूसरा आज का दिन है जिसमें कि अदालत-ए-उज़्मा में ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो ज्यादती हुई, चाहे वो उसकी सबक की सूरत में हो या उसके अलावा जो उनके रास्ते में रुकावटें हायल की गई, वहाँ पे नॉमिनेशन पेपर खींचे गए, लोगों को उठाया गया, हर तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने नुमाइंदे अपने कैंडिडेट को न कर सके। वो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से जो भी होना था वो हो गया। आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, पाकिस्तान की जुडिशल तारीख में, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये एक सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। और हमें इस चीज़ का बड़ा फख्र है और ये उम्मीद हमारी दोबारा पाकिस्तान के अवाम की उभर आई है कि अदालतें इंसाफ दे सकती हैं, अदालतें इंसाफ दे रही हैं। लेकिन साथ ही साथ में हमें ये कहना चाहूँगा कि हमारी जदोजहद के दो मरहले थे। एक वो जो कानूनी जंग लड़ी और दूसरी वो जिसका कि फैसला आज हुआ, या बाकी भी इस तरह के खान साहब के सारे सियासी बुनियादों पे जो मुकदमा दायर किए गए थे वो सारे एक एक करके हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिर रहे हैं। और अब एक केस रह गया है इधर का केस, उसमें भी हमने देखा है कि इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि इस तरह का केस जो कि एक बहुत ही एक कभी हरकत है कि किसी की रिलेशनशिप पे, किसी की शादी पे इस किस्म के एतराज़ात उठाना और फिर उसको इस तरह से भौंडे तरीके से मैनेज करना। हमारा जो दूसरा जो कि सियासी जद्दोजहद है उसका हिस्सा वो है कि वो लोग जो कि फॉर्म 47 के जरिए उनको हराया गया, उनका मैंडेट हमने रिकवर करना है। ये हमारा दूसरा हदफ है। ये हदफ हमारी जमहूरी और सियासी जो जद्दोजहद है उसका एक अहम तरीन हिस्सा है, क्योंकि जब तक के नहीं बनाएंगे, नए लोगों को शामिल करेंगे। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन हमें दे दी है कि हमने जो 39 डेलीगेट्स का आज भी अच्छा उमर यूब साहब, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ। फाइल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदिन 15 डेज आप लिस्ट हमें दें, तो शायद इसके बाद वही होगी, लेकिन हम दोबारा एक मिनट मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, एक मिनट मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से इशारे, सर हुकूमत की तरफ से इशारे आ रहे हैं कि रिव्यू में जाना है। उन्होंने कहा ऑप्शन सिर्फ रिव्यू का है। क्या अगर रिव्यू में जाते हैं तो ये फैसला इस पे इम्प्लीमेंट कितनी ताखीर होगी और आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? और दूसरा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई इनके पास अब कितनी सीटें होंगी? कानूनी बहुत साफ और मेरी दानिश में सबको नोटिस जारी हो चुके हैं, उसके जवाब जमा करा दिए। सवाल ले लिया करें, जो व्हाइट माइक पड़ा हुआ है सवाल ले लिया करें। अरे भाई इधर आए, आज मैं बात के लिए कितने सफेद है अपने लोग कैमरा आपके ऊपर छोड़ दो, जैसे सुनाना शुरू हुआ तो आपके चेहरे पे जो